اور کلام خدا میں لکھا ہے نہ یہ زور سے ہے اور نہ یہ، سارے بولیے نہ یہ اور نہ یہ، سارے بولیے نہ یہ اور نہ یہ، بلکہ کس سے ہے؟ ہاں، اگر یہ زور کا کام ہوتا تو پہلوان اس میں ہوتے ہیں، پہلوانوں کو یہ کام سونپا جاتا۔ یہ زور کا اور نہ طاقت کا کام ہے۔ یہ جب خدا کا روح چھوٹے سے بچے پر بھی آتا ہے تو وہ بھی شیروں کے منہ بند کر دیتا ہے۔ آمین۔ یہ خدا کے روح کا کام ہے، اور خدا کا روح بائبل میں جہاں جہاں پر بھی نازل ہوا لوگوں پر، لوگوں قوت سے بھر گئے اور دلیری سے بھر گئے۔ پاک روح کے بغیر آپ دلیر نہیں ہو سکتے۔ میں نے کیا بولا؟ ہاں، پاک روح کے بغیر آپ دلیری نہیں پا سکتے۔ کتنے لوگ جانتے ہیں جن کے پاس خدا کا کلام ہے؟ نکالیے رسولوں کا اعمال اس کا 2 باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن پترس ان 11 کے سامنے کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا کہ اے یہودیوں اور یروشلم کے سب رہنے والوں، سنیے، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشے میں نہیں۔ مل کے بولیے، یہ نشے میں نہیں، کیونکہ ابھی تو دوپہر ہی کیا دن چڑھا ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی ہے کہ خداوند فرماتا ہے۔ مل کے بولیے کہ خداوند فرماتا ہے، آواز کم ہے، خداوند فرماتا ہے، خدا فرماتا ہے، اونچی بولیے، خدا فرماتا ہے، آواز کم ہے، خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا۔ کیا کروں گا؟ میں اپنی روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا۔ یہاں پر لکھا ہے کہ پترس ان 11 کے سامنے کھڑا ہو کر بلند آواز سے کہنے لگا کہ یہ لوگ جن کو تم دیکھ رہے ہو یہ نشے کے اندر نہیں ہے۔ تم یہ سوچ رہے ہو کہ یہ نشے کے اندر ہے، یہ 120 کی جماعت تھی، اور پترس کہہ رہا ہے یہ 120 کی جو جماعت ہے، لکھا پترس ان سب میں سے پہلے کھڑا ہو گیا۔ اب غور سے سنیے، یہ وہی پترس ہے جب یسوع مسیح کو مصلوب کیا جا رہا تھا، جب یسوع مسیح کو وہ پکڑ کر لے کر جا رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ تو یسوع کے ساتھ ہے۔ اس نے کہا میں تو اس یسوع کو جانتا بھی نہیں ہوں۔ ایک چھوٹی بچی نے کہا یہ بھی یسوع کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا میں یسوع کو جانتا تک نہیں ہوں۔ اب یہ پترس ہے، اس پترس نے یسوع کے ساتھ مردوں کو زندہ ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ اس پترس نے یہ دیکھا ہے کہ یسوع مسیح تھوڑی سی روٹیاں اور مچھلیوں سے ہزاروں لوگوں کو سیر کرتا ہے۔ یہ وہی پترس ہے جس نے یسوع مسیح کو پانی پر چلتے دیکھا ہے۔ یہ وہی پترس ہے، غور سے سنیے گا، یہ وہی پترس ہے، غور سے سنیے، جب یائر کی بیٹی زندہ ہونے والی تھی یہ پترس یسوع کے ساتھ تھا۔ یہ وہی پترس ہے جس کی کشتی کے اندر ساری رات محنت کرنے کے باوجود بھی، پانی کے اندر رہنے کے باوجود بھی مچھلیاں نہیں آئی۔ یہ وہی پترس ہے جس نے، غور سے سنیے گا، میری طرف دیکھیے، یہ وہی پترس ہے جس نے آسمان سے یہ آواز سنی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، یہ
मेरा प्यारा बेटा है। ये वही पतरस है जिसने कहा उस्ताद यहां पर हम 3 खेमे लगाएंगे। ये वही पतरस है जिसने यीशु मसीह के साथ खाना खाया। ये वही पतरस है जिसने एक आदमी का कान जो है वो उतार दिया। ये वही पतरस है। लेकिन गौर से सुनिएगा, मैं आपको बात बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह के बारे में उससे पूछा गया तो उसने कहा मैं जानता तक नहीं हूं, मैं इस यीशु को जानता तक नहीं। और पतरस ने क्या किया, गौर से सुनिए। पतरस ने सिर्फ ये नहीं, पतरस ने यीशु मसीह को बुरा भला कहा। गौर से सुनिएगा, इस बात को गौर से सुनिएगा। ये पतरस बच्चों से भी डरता है, ये पतरस बड़े लोगों से भी डरता है। लेकिन हुआ क्या कि जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया, ये यीशु के साथ 3.5 साल इसने खाना खाया, इसने पानी पिया, इसने यीशु मसीह के साथ वक्त गुजारा। मैं आज सुबह आपको बताना चाहता हूं, मसीही होना काफी नहीं है। याद रखिए, क्रॉस पहन लेना काफी नहीं है, गीत और ज़बूर गा लेना काफी नहीं है, और से सुनिएगा चर्च आ जाना काफी नहीं है, चर्च में बैठ जाना काफी नहीं है। पतरस ने सब कुछ किया, लेकिन पतरस यीशु मसीह का गवाह नहीं था। गौर से सुनिए, यीशु मसीह का गवाह नहीं था। पतरस यीशु के साथ सब कुछ करता था, लेकिन वो यीशु मसीह का गवाह नहीं था। लेकिन एक दिन ऐसा आया, मेरी तरफ देखिए, एक दिन ऐसा आया, एक दिन ऐसा जबरदस्त था। और कलाम कहता है कि वो ईद पेंतीकोस्त का दिन था, और यीशु मसीह ने भी वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी भी यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। यीशु उनसे अपनी मुक्ति की बातें कर रहा है। यीशु कहता मैं जाता हूं और मैं जाकर बाप से दरखास्त करूंगा कि वो तुम्हारे लिए एक मददगार भेजे। मैं जाता हूं, और लिखा वो रोना शुरू हो गए। यीशु मसीह ने उनसे वादा किया था वो तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर रहेगा, वो तुम्हारे अंदर रहकर काम करेगा। अब गौर से सुनिएगा, जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया, ये वही पतरस है जो यीशु मसीह के साथ रहता है। लेकिन ये पतरस गवाह नहीं है यीशु मसीह का। ये पतरस यीशु मसीह की गवाही देने वाला नहीं है। गौर से सुनिए, यीशु मसीह को सलीब पहनने वाले, चर्च में बैठने वाले लोगों की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह को गवाही देने वाले लोगों की जरूरत है, जो दुनिया में उसके नाम की गवाही दे। यीशु मसीह को ऐसे लोगों की जरूरत है जो गवाही दे उसकी। और गवाही के लिए स्टेज का होना जरूरी नहीं है, गवाही के लिए माइक का होना जरूरी नहीं है, गवाही के लिए गौर से सुनिएगा चर्च बिल्डिंग का होना जरूरी नहीं है, गवाही के लिए खुदा के रूह से भरना जरूरी है। एक मसीही को जुबान की जरूरत है, जगह की जरूरत नहीं है। पाखरू की आग से भरी हुई जुबान की जरूरत है। ये वही पतरस है, लेकिन यहां पर ये पतरस एक डिफरेंट आदमी है। यहां पर लिखा है लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। कहा है लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद करके लोगों से कहा, ए यहूदियों और यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। मैं आपको बात बताना चाहता हूं, पहले ये छुपा हुआ है, पहले ये बयान नहीं कर रहा, गवाही नहीं दे रहा। जब यीशु को मसलूब किया जा रहा है ये छुपा हुआ है, लेकिन अब ये कहता है, ऐ शहर के लोगों, पहले ये बच्ची से डर रहा है, पहले बच्ची कह रही है कि ये यीशु के साथ रहता है। उसने कहा नहीं नहीं, मैं यीशु को जानता
जानता नहीं। अब गौर से सुनिएगा, जब वो पाखरू से भर चुका है, जब ईदे पेंतिकोस्त के दिन जब उसके ऊपर रूह कुद्दस नाजिल हुआ है, उसके ऊपर पाक रूह की बरकत नाजिल हुई है। पहले तो वो बच्ची से डर रहा है, अब पूरे शहर को मुखातब कर रहा है और कह रहा है, ऐ यरूशलेम और यहूदियों और शहर के लोगों, ये बात गौर से सुन लो, गौर से सुन लो। ये कैसा, ये डिफरेंट आदमी है। पहला आदमी एक बच्ची से डर रहा है, पहला आदमी एक बच्ची से, छोटी सी बच्ची से डर रहा है। लेकिन ये आदमी एक डिफरेंट आदमी है। ये आदमी एक कुव्वत से भरा हुआ आदमी है। ये आदमी, गौर से सुनिएगा, ये आदमी गौर से सुनिए, ये खुदा की कुदरत से भरा हुआ है। ये आदमी यीशु मसीह के जलाल से भरा हुआ। इस आदमी को चेक करें और ये सुनिएगा, इसने यीशु मसीह पर लानत भी की। आए हवाला निकालिए, मत्ती की इंजील निकालिए, 26वां बाब और 74 वर्स। निकाल लिया है? 72 वर्स से पढ़ेंगे। उसने कसम खाकर फिर इनकार किया कि मैं इस आदमी को, सारे बोलिए, मैं इस आदमी को, सारे बोलिए, उन्होंने कहा तुम इसको जानते हो? उसने कहा नहीं नहीं, मैं कसम खाकर कहता हूं मैं इसको नहीं जानता। इधर देखिए मेरी तरफ। उसने कहा मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैं इसको नहीं जानता। वो यहां तक भी कहता होगा इसको जरूर मारो, इसने इंतशार फैलाया हुआ है, इसको जरूर मारो, क्योंकि इसने, गौर से सुनिए, मजहबी रहनुमाओं की कमाई को खत्म कर दिया है। गौर से सुनिए, जब यीशु मसीह वहां पर था और हुआ क्या कि मजहबी लीडर हैरान हो गए थे, ये किस किस्म का आदमी है। याद रखिए, जहां पर भी खुदा की कुदरत नाजिल होती है, मजहब वहां पर परेशान हो जाता है। सुनिएगा, उसने कसम खाकर कहा मैं सा। थोड़ी देर के बाद जो वहां खड़े थे, उन्होंने पतरस के पास आकर कहा बेशक तुम भी, हाँ तुम भी मेरी तरफ देखिए, क्योंकि तेरी बोली से भी क्या होता है, तेरी बोली से जाहिर होता है। आगे आगे सुनिए, आगे सुनिए क्या लिखा है। इस पर वो लानत करने, क्या करने लगा? वो बोलो भी, इस पर वो, हाँ इस पर लिखा, इस पर वो लानत करने और कसम खाने लगा कि मैं इस आदमी को, सारे बोलिए, मैं, लिखा लानत करने लगा। वो किस पर, हाँ क्या करने लगा वो? सारे बोलिए, कितने मसीही इस तरह के हैं, जब मुश्किल वक्त आया तो वो यीशु मसीह को भूल गए और कहते हम इसको जानते ही नहीं है। अगर यहां पर कोई भी आज तलवार लेकर आ जाए, कहे मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा, आप सर कलम करवाएंगे कि इनकार करेंगे? हाँ ऊंची बोलिए ना, हाँ बोलो भी, हाँ बोलो। अगर अभी तलवार आ जाए, आप सर कलम करवाएंगे कि आप इनकार करेंगे? उसने कसम खाकर कहा, उसने कहा इस यीशु मसीह को मैं जानता नहीं। लिखा उस पर वो लानत करने लगा। क्या करने लगा? किस पर? यीशु मसीह पर वो लानत करने लगा। ये बाइबल की बात है। आपने शायद पहले सुना हो कि ना सुना हो।
ये वही पतरस है जो यीशु के साथ रहा है। लेकिन गौर से सुनिए, जैसे ही हम रसूलों के ईमान में आते हैं, ये पतरस एक डिफरेंट आदमी है और ये पतरस एक मुख्तलिफ आदमी है। पहला, ये पतरस यीशु के साथ रहना काफी नहीं है। हम मसीही हैं, हमने क्रॉस पहनी हुई है, हम चर्च जाते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, ये काफी नहीं है। मेरे अजीजों, यीशु के साथ रहने में मजा नहीं है, यीशु के हमारे अंदर रहने में मजा है। जब वो अंदर आ जाएगा तो हम एक डिफरेंट इंसान हो जाएंगे। यीशु मसीह को अंदर ले लिखा ये पतरस, यही पतरस वो यहूदियों के सामने खड़ा हो गया है। ये पतरस, और इसने कहा है, ए यहूदियों, मिलके बोलियो, क्या कहा है? और यरूशलेम के लोगों, इसने किस तरह कहा होगा? इस तरह कहा होगा, यहूदियों ते यरूशलेम दे लोगों, इस तरह कहा होगा। हाँ? जब ये लानत करता होगा तो किस तरह करता होगा? मैं नहीं जानता। लेकिन जब ये गवाह ठहरा है, गौर से सुनिएगा, जब ये गवाह से लिखा है, और पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद करके लोगों से कहा। किस तरह कहा? सारे बोलिए, किस तरह कहा? अपनी आवाज बुलंद करके कहा, और उसने कहा, ए यहूदियों और यरूशलेम के लोगों, ए यहूदियों और यरूशलेम के लोगों। याद रखिए, जब खुदा का रूह आता है, छोटी आवाज भी बुलंद हो जाती है, छोटी आवाज भी बुलंद हो जाती है, कमजोर भी जोरावर हो जाता है, और गिरा हुआ भी खड़ा हो जाता है, मरा हुआ भी जिंदा हो जाता है, बेगवाह भी गवाह बन जाता है, आग से खाली आग से भर जाता है, और उसके सामने कोई भी आदमी खड़ा नहीं हो सकता। जो आदमी खुदा के रूह से भर जाता है, हमें खुदा के रूह की इस सुबह जरूरत है। शायद आप एक डिफरेंट आदमी होकर चर्च में आए हैं, शायद आप सारी जिंदगी वही आदमी है जो बैठते हैं, चले जाते हैं, बैठते हैं। खुदावंद को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, खुदावंद को ऐसे लोगों की जरूरत है जो बुलंद आवाज से उसके नाम की गवाही दे, उसके नाम की गवाही दे। लिखा, कौमों में उसके नाम का प्रचार करो।